Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. So this case scenario is based on a determination of a transaction price under Ind AS 115, which is our step number 3 and the main topic is our variable consideration. So let us see data given in this scenario. So we are given Larsen and Toubro Limited LPL company is engaged in manufacture of machinery and machine tools which are supplied to industrial consumers. During current financial year, LPL has entered into following contracts with its customers for supply of machinery और other assets. इस सिनेरियो में आपको 3 कस्टमर दे रखे हैं. नंबर 1 भारत मेटल्स लिमिटेड, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट की एंटर विद कस्टमर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, नंबर 3 is भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. Again, different MCQs are given. So we have to determine transaction price for supply of machinery. So to customer Bharat Metals Limited. Similarly, second MCQ and third MCQ. तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. तो फर्स्ट वन है आपका कस्टमर है भारत मेटल्स लिमिटेड. तो लेट अस सी डाटा गिवन हियर इज the contract is entered with the customer to build a sophisticated machinery for a consideration of rupees 250 lakhs to be delivered by 31st March of current year. तो आपने मशीनरी की सप्लाई देनी है, उसकी वैल्यू है 250 lakhs. The consideration amount will be reduced or increased depending on the timing of completion of the asset. तो आपका जो consideration है ये वेरिएबल है, चेंज हो जाएगा ड्यू टू अवर timing of completion. Specifically for each day after 31st March that the asset is incomplete. यदि आपकी asset complete नहीं होती है up to 31st March, then promised consideration is reduced by rupees 1 lakh for each day. फिर एक तरीके से आपको पेनल्टी पड़ जाएगी 1 लाख पर डे. एंड फॉर ईच डे बिफोर 31st मार्च, इतनी जगह आपकी कंप्लीशन 31st मार्च से पहले हो जाती है. then the asset is complete, the promised consideration will increase by 1 lakh. फिर आपको एक बोनस मिल जाएगा, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बोनस 1 lakh per day. So now it is given that in addition upon completion of the asset, a third party will inspect the asset and assign a rating based on the metrics that are defined in the contract. तो फर्दर completion के टाइम पर इसकी रेटिंग की जाएगी. And if the asset receives a specified rating, the entity will be entitled to an incentive bonus of 15 lakhs. फिर आपको बोनस भी मिलेगा इसमें 15 lakhs if it is on the basis of a rating. Now it is given that so there is a 80% chance that asset is completed 10 days before 31st March. अब 80% चांस है कि आपकी asset की completion हो जाएगी 10 days before and 20% chance that asset is completed 5 days after 31st March. And 75% chance that the asset receives the specified rating. और 75% चांस है कि आपकी एसेट की रेटिंग जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी. अब आपको देखो नंबर 1 MCQ में डिटरमिन करना है व्हाट इज ट्रांजैक्शन प्राइस फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी टू भारत मेटल्स लिमिटेड. तो स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज अवर MCQ नंबर 1 and our customer is contract is entered with the customer. Contract with the customer. So customer is Bharat Metals Limited, which is our BML. तो अब देखिए आपको ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करना है. सो व्हाट विल बी ट्रांजैक्शन प्राइस. पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहले को आपका जो प्राइस है उसको हमें मेंशन किया है कंसीडरेशन जिस 250 lakhs. इट मीन दिस इज प्राइस ऑफ मशीनरी. सो प्लस फिर आपको मेंशन किया है यदि आपकी टाइमली कंप्लीशन हो जाती है, अर्ली कंप्लीशन है या आपकी लेट कंप्लीशन है, तो उस केस में आपको मिलेगा परफॉर्मेंस बोनस. तो प्लस आपको ऐड करना है व्हाट इज परफॉर्मेंस, वी कैन से इट कैन बी बोनस और पेनल्टी. अर्ली कंप्लीशन है यू विल गेट एडिशनल कंसीडरेशन. यदि आपकी लेट कंप्लीशन है देन यू विल हैव टू मेक पेनल्टी, मीन्स आपका कंसीडरेशन रिड्यूस हो जाएगा. और फर्दर एक आपको दिया है इंसेंटिव बोनस. तो इट मीन्स प्राइस को आपको फिक्स यही रखा है जिस वन गिवन टू अस. और अब आपकी जो परफॉर्मेंस बोनस है और एक जो इंसेंटिव बोनस है ये है आपकी वेरिएबल कंसीडरेशन.
अब इसमें आपको देखते हैं कौन सा मेथड हमारा सुटेबल है, जिसमें आपका एक ही आउटकम होता है तो और उसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% होती है, उसमें हम अप्लाई कर रखे हैं मोस्ट लाइकली मेथड। तो जिसमें आपके आउटकम्स चेंज होते हैं उसमें हम अप्लाई करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो अब देखिए पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस बोनस। अब जो परफॉर्मेंस बोनस है, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर वन आपको देखो मेंशन किया है, आपके एसेट की कंप्लीशन हो रही है 10 डेज बिफोर। इट मीन्स इसमें आपको अर्ली बोनस मिलेगा, अर्ली कंप्लीशन। और देखिए आपका डिले हो रहा है, देन यू विल अवर कंसिडरेशन विल रिड्यूस बाय 1 लाख पर डे। और जो डिले है उसका आपको टाइम दे रखा है 5 डेज। इट मीन अर्ली कंप्लीशन कितनी है, और इट कैन बी डिले इन कंप्लीशन। फर्दर अर्ली कंप्लीशन है आपकी 10 डेज की, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं रुपये 1 लाख पर गए। अब इसका चांस आपको दिया है 80%, तो जिस चांस है 80%, और जो लेट कंप्लीशन है 20। तो आप देखते हैं दोनों में जो हमारा कॉन्सिडरेशन है वो चेंज हो रहा है, तो इसमें हम अप्लाई कर देंगे वैल्यू परफॉर्मेंस बोनस के लिए बेटर मेथड है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो लेके सी वट इज अवर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस परफॉर्मेंस बोनस। अर्ली कंप्लीशन की वैल्यू बनती है, देखो 10 डेज है आपका, तो 1 लाख आपको मेंशन किया है पर डे, उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो रुपीज़ 1 लाख पर डे इंटू 10 डेज, और इसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी 80%। और देखिए आपका डिले हो रहा है कंप्लीशन में, फिर आपको पेनल्टी बढ़ जाएगी 1 लाख पर डे, क्योंकि आपका कंसीडरेशन रिड्यूस हो जाएगा। और इसके 5 डेज हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी है 20%। तो इट मीन्स ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ऑफ परफॉर्मेंस बोनस। तो लेकर सी हाँ मुझे जिस 10 लाख इंटू 80%, किसी 1 लाख एंड किसी 5 लाख इंटू 20%, विच इज 1 लाख, सो 8 माइनस 1 इट विल बी 7 लाख रुपीज। इतनी सब इसमें गो अनसर्टिनिटीज चल रही हैं। एक तो इंसेंटिव बोनस मिलेगा आपको, यदि रेटिंग ठीक है, और एक आपका कंप्लीशन का बोनस। तो कंप्लीशन में हमने अप्लाई किया एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। अब देखते हैं इंसेंटिव, तो किसी की बेस्ड ऑन रेटिंग, ये आपको रेटिंग के बेस पे मिलेगा। अब इसमें इंसेंटिव आपका फिक्स है, इट इज गिवन टू अस 15 लाख है। और इसमें जो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपकी रेटिंग अचीव हो जाएगी और उसका चांस जो कितने हैं 75% है, और रेटिंग अचीव नहीं होगी उसका चांस है 25%। तो उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं मोस्ट लाइकली मेथड। इसमें हम वो आउटकम लेते हैं जिसका चांस मोर देन 50% होता है और सिंगल आउटकम होता है हमारा। तो इट मीन्स इंसेंटिव बोनस मोस्ट लाइकली मेथड में आपको अमाउंट दे रखा है ₹15 लाख, एंड इट्स चांस इज अवर 75% विच इज मोर देन 50%। तो इसमें इसकी वैल्यू बन जाएगी 15 लाख। नाउ वी कैन डिटरमिन व्हाट विल बी टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस। So legacy transaction price for contract with customer अवर भारत मेटल्स लिमिटेड इज इक्वल टू फिक्स प्राइस जो को आपको दिया है ₹250 लैक्स, प्लस अब आपकी जो अर्ली कंप्लीशन का जो बोनस है आपका उसकी वैल्यू है 7 लाख, तो ये लैक्स में चल रहे हैं फिगर, प्लस जो इंसेंटिव बोनस है उसकी वैल्यू है 15 लाख। So transaction price is rupees, this one is 22 and this will be rupees 272 lakhs. So now you can see which option is correct. Answer is option number C is correct. So next we have a contract with customer भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो पहले डिस्कस करके हैं एमसीक्यू का आपको मेन बेनिफिट क्या है। वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने एमसीक्यू में कवर कर लिए हैं, और जितने भी आपके एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमने कवर की हैं। सो गेट गुड प्रैक्टिस, और मेन बेनिफिट है कि आपका फुल सिलेबस आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं थ्रू एमसीक्यू। तो लेकर से अब सेकंड कॉन्ट्रैक्ट पे जो कस्टमर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसमें जैसे आपको डाटा मेंशन किया है, the company has entered into a contract with the customer to build a sophisticated machinery for an agreed upon price of rupees 25 crores. The construction is scheduled to be completed by the end of 36th month. The entity has an opportunity to earn a performance bonus for early completion as follows. इसमें कंपनी को बोनस मिल सकता है अर्ली कंप्लीशन का 15% बोनस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इफ इट इज कम्प्लीटेड बाय 30th मंथ, और उसका चांस है 25%।
10% bonus if it is completed by 32nd month, chance is 40%. 5% bonus if contracted completed by 34th month, चांस है जो 15%। तो इट मीन्स इसमें आपके डिफरेंट आउटकम्स हैं, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो अब इसकी यदि हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बेस्ट मेथड है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। फर्दर इट इज गिवन कहकर LTL है is entitled to a quality bonus for ₹2 crores if a gold star rating is achieved from health and safety inspector। फिर यदि आपको रेटिंग मिल जाती है गोल्ड स्टार, फिर आपको एक क्वालिटी बोनस मिल जाएगा। एंड LTL concludes that it is 60% likely that it will receive quality bonus। इसमें देखो एक ही आउटकम है और उसका चांस है कि मोर देन 50% है, तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड। तो अब आपको MCQ नंबर सेकंड मेंशन किया है, वी हैव टू डिटरमिन ट्रांजैक्शनल प्राइस फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी टू कस्टमर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड विच इज BEML। तो लेट अस सी व्हाट विल बी ट्रांजैक्शन प्राइस इन दिस केस। तो ट्रांजैक्शन प्राइस उसमें भी आप देखेंगे 3 कंपोनेंट्स हैं आपके। नंबर 1 एक आपको दिया है एग्री प्राइस, देखिए जबर नॉर्मल प्राइस फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी, एक तरीके से ये आपका प्राइस है फिक्स्ड। और प्लस देखिए आपको टाइमली कंप्लीशन कर रखे हैं, अर्ली कंप्लीशन, उसका आपको बोनस मिल जाएगा। सेकंड वी हैव टू ऐड अर्ली कंप्लीशन बोनस, और प्लस नंबर 3 आपको मिलेगा क्वालिटी बोनस। ये अच्छे क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है ये जो हम कर रहे हैं इस MCQ में। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको ट्रांजैक्शन प्राइस से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। अब एग्री प्राइस आपको दे ही रखा है। अब क्वेश्चन अराइव होता है जो कंप्लीशन बोनस है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले कैलकुलेट करके हैं वैल्यू ऑफ अर्ली कंप्लीशन बोनस। इस केस में देखिए आपको डिफरेंट आउटकम दिए हैं, डिफरेंट बोनस हो सकते हैं आपका। इट मीन्स वी विल अप्लाई इन दिस केस एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। इसमें जो डिफरेंट अनसर्टेनिटीज़ हैं हमारी, उन पर डिफरेंट मेथड अप्लाई हो रही हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में आप देखिए कितना बोनस बन के है। आपका जो प्राइस है 25 करोड़, उसमें आपको बोनस मिलेगा पहले 15%, 25 इंटू 15%। सेकेंड पॉसिबिलिटी है आपको बोनस मिलेगा 10%, 25 करोड़ इंटू 10%। थर्ड पॉसिबिलिटी है आपका बोनस है 5%। फिर इनकी प्रोबेबिलिटीज आपको मेंशन की हैं 25%, यानी कि 40%, यानी कि गिवन 15%। इन सबको आप ऐड कर लीजिए तो ये आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। इसमें रुपये आपके चलते हैं करोड़ में, 25 करोड़ हैं। लेट अस से हाउ मच इज दिस बोनस। सो 25 इंटू 15% इंटू 25%, दिस इज 0.9375। देन 25 इंटू 10% इंटू 40%, दिस इज 1, यानी कि 25 इंटू 5% इंटू 15%, 0.1875। So total value of this bonus जिसे 2.125 करोड़ से। अब सेकंड कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ क्वालिटी बोनस। जब आपका एक ही आउटकम होता है और उसके बाद 2 पॉसिबिलिटीज हैं यस और नो, तो उस केस में हमारा अप्लाई होता है मोस्ट लाइकली मेथड। तो अब देखिए इस केस में आपको जो बोनस मिल रहा है क्वालिटी बोनस जिस इज गिवन ₹2 करोड़। अब इसके चांस आप देखिए, एंड दिस चांस है 60%, देखिए मोर देन 50%, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बिकॉज चांस इज अबर 60% मोर देन 50%, सो इस वैल्यू इज ₹2 करोड़। तो मोस्ट लाइकली मेथड में हम इस वैल्यू को कंसीडर करते हैं इफ एक्स चांस इज मोर देन 50%। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज अवर ट्रांजैक्शन प्राइस और सप्लाई ऑफ मशीनरी टू दिस कस्टमर BEML। ट्रांजैक्शन प्राइस है आपका, एग्री प्राइस है ₹25 करोड़, अर्ली कंप्लीशन बोनस है आपका 2.125 करोड़, प्लस क्वालिटी बोनस है आपका 2 करोड़। तो अमाउंट्स आपके रुपीज़ में आ जाएंगे 2.125 प्लस 27, इसे 29.125 करोड़। So now you can see which option is correct. Answer is option number B. So next we have contract with customer Bharat Electronics Limited, which is Bell. So in this question, let us see. So what data is given?
So company has entered into a contract with a customer to build an asset for rupees 1 lakh with a performance bonus of rupees 50,000 that will be paid based on the timing of completion. इसमें देखो प्राइस आपको दिया है 1 लाख प्लस आपका बोनस है परफॉर्मेंस 50,000, वो डिपेंड कर रहा है अपॉन टाइमिंग ऑफ completion. The amount of performance bonus decreases by 10% per week for every week beyond agreed upon completion time. यदि आपका टाइम पर कंप्लीट हो रहा है प्रोजेक्ट तो आपको 50,000 मिलेगा। यदि आपका 1 वीक डिले है फिर 10% बोनस आपका रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से कि 2 वीक्स डिले है फिर आपका 10% और रिड्यूस हो जाएगा। नाउ इट इज गिवन दैट so company estimates that there is 60% probability that contract will be completed by time and 30% probability that it will be completed 1 week late and 10% probability that it will be completed 2 weeks later. तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, completion in time है, delay by 1 week है, delay by 2 weeks है. Now they are asking MCQ number 3. So we have to determine the transaction price for supply of asset to customer भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. तो आपको ट्रांजेक्शन प्राइस इसमें डिटरमिन करना है. तो लेट अस से व्हाट विल बी फार्मूला फॉर दिस. So in this case transaction price इज इक्वल टू एक तो आपका फिक्स्ड प्राइस है विच एवर फिक्स्ड कंसीडरेशन प्लस आपका है इसमें टाइमली कंप्लीशन बोनस. देन वी हैव टाइमली कंप्लीशन बोनस. अब इस ये जो बोनस है ये आपका चेंज हो रहा है जिसको हम कहते हैं जिस वेरिएबल कंसीडरेशन है आपका ट्रांजेक्शन प्राइस में. अब इसमें देखो जो आउटकम्स हैं वो आपकी 3 आउटकम्स बन जाएंगे. आपका टाइमली कंप्लीट हो रहा है, 1 वीक डिले है, 2 वीक्स. तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. बेस्ट मेथड है इस केस में अब आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड. तो कैलकुलेट करके हैं पहले व्हाट इज वैल्यू ऑफ टाइमली कंप्लीशन बोनस. उसकी कोई वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी. अब आपके पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि आपका टाइमली कंप्लीट हो रहा है, 1 वीक डिले है. नंबर 1 है टाइमली कंप्लीट. फिर है आपका यदि 1 वीक डिले हो रहा है और थर्ड पॉसिबिलिटी है आपकी कि 2 वीक्स डिले हो सकता है आपका. यानी से व्हाट विल बी बोनस. टाइमली कंप्लीशन में आपको 50,000 बोनस मिल जाएगा. अब देखिए आपका 1 वीक डिले है तो 10% रिड्यूस हो जाएगा बोनस. इट मीन फिर आपका बोनस लग जाएगा 50,000 इंटू 90%. और यदि 2 वीक्स डिले है फिर आपका बोनस 10% और रिड्यूस हो जाएगा. इट मीन ये रहेगा 80%. एंड देन यू मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी. अब कितना चांस है कि ये आपको बोनस रिसीव हो जाएगा. तो आपको मेंशन किया है इसमें 60% प्रोबेबिलिटी है ऑफ कंप्लीशन इन टाइम, 30% है 1 वीक डिले, 10% है 2 वीक डिले. दिस इज 60%, 30% एंड 10%. सो वैल्यू ऑफ दिस बोनस इज कमिंग. सो 50 इंटू 60% दिस इज 13,000 प्लस 45,000 इंटू 30% 13,500 plus 80% 40,000 into 10 4,000. So value of this bonus is our 47,500. So now we can determine what is transaction price. So therefore transaction price fixed price जो आपको मेंशन किया है ₹1 लाख प्लस बोनस है आपका 47,500. So transaction price will be ₹147,500. Now you can see which option is correct. Answer is so option number A is our correct. So in this lecture we have discussed case scenario based on determination of transaction price. Further topics we will continue in future lectures. वीडियो आपको अच्छे लगते हैं सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.